Hey everyone, welcome back to our another one on nice session. Hi, I'm Sakshi Chaudhary from Team Shakti. जैसा कि आप सब जानते हैं, शक्ति इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू वीडियोस, लाइव सेशंस एंड कोट्स. सो आज की हमारी इस लाइव सेशन की स्पेशल गेस्ट है कल्पना नंदू. शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड entrepreneur, an educator, and a fashion stylist. Today, she will be here with us to share her journey, experiences, and spread positivity. So, let's welcome our guest, Kalpana Nandu. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. How are you, ma'am? Fine, fine. How are you? Ma'am, I'm great. Ma'am, firstly, thank you so much for accepting our invitation. Thanks to you also to give me this opportunity. Ma'am, it's really our pleasure to have you in our platform. You being such, a well-recognized makeup influencer, makeup artist, Hmm. and I actually saw your Instagram, and your makeup looks are spot on. And today also you look so beautiful, ma'am. Thank you So so it's much. really our pleasure. It's really our pleasure to have you in our platform. Yeah, tell me. Okay, ma'am, as you know, our channel Shakti is about spreading positivity, right? Hmm. So why don't you share one of your positive experiences with our audience? About my experience. See, Any positive experience, what? any experience that happened with you that changed your life, or that gave you a bit of positivity, that Uh, motivated you in job. See, the Yeah. positivity is like I am like into this industry all of sudden, and at the age of 37, I started learning makeup. And after that I am into this within 3 years. So it's a great positivity. It's like ki at the any age you can change your career and you can start with the new profession. That's the positive thing I can see in my field, or you can say in my life. Ma'am, you started this in this industry at the age of 37, Yeah, right? at the age of 37. मैम दैट्स रियली ग्रेट. कि बहुत लोग सोचते हैं कि शादी के बाद लाइफ खत्म हो जाती है. Hmm. फॉर जनरली फॉर वुमेन दे फील लाइक नाउ दे हैव रिस्पांसिबिलिटी ओनली फॉर देयर फैमिली. Hmm. They don't focus on themselves. Okay. But you started your career after your marriage at the age of 37. That's the true definition of women empowerment. That you can follow your dreams, Hmm. passion whenever you want. Actually, my career started too late. Actually, I was 10 years totally a housewife, with the kids, with the family and all the things together. वो सब चीजें हो रही थी. उसके बाद I'm into fashion designing. Actually, for 4 to 5 years I was a fashion designer, and I was having my own boutique. But later on I realized I need to start with the makeup, learning makeup. Why? Because I'm going for the judging in garba competitions and any events. Hmm. So on stage, when you feel you are on a stage, so little makeup, at least you need knowledge about the makeup. आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए मेकअप के लिए, क्योंकि स्टेज पे आप जा रहे हो तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं. सो दैट कंसर्न आई फील कि मुझे मेकअप सीखना चाहिए, और उस वजह से मैंने Hmm. मेकअप सीखना स्टार्ट किया. एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि मैं मेरा प्रोफेशन कब चेंज हो गया फ्रॉम फैशन डिजाइनर टू मेकअप आर्टिस्ट. एंड दैट टू मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी एट द एज ऑफ 37 मैंने स्टार्ट किया सीखना. बट तभी मेरा Hmm. इंटेंशन नहीं था कि मैं ये फील्ड में जाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी आई एम सेटलिंग टू वन अनदर फील्ड विच इज लाइक फैशन डिजाइनिंग. आई वॉज हैविंग माई ओन बुटीक, और वो बहुत अच्छा चल रहा था. एंड द थिंग इज कि मैंने जैसे मेकअप सीखा, मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया. एंड देन आई लाइक गेटिंग ऑर्डर्स. मेरा सबसे पहला ऑर्डर ब्राइड का था, एंगेजमेंट ब्राइड. एंड वो बहुत अच्छा गया. सो आई रियलाइज कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ. तो मैंने 1 साल तक दोनों फील्ड साथ में स्टार्ट रखे. डिजाइनिंग भी चालू रखा और मेकअप का फील्ड भी चालू रखा. Makeup भी. हाँ. बट आफ्टर 1 ईयर आई रियलाइज कि इतने सारे ऑर्डर्स बढ़ रहे थे कि मैं दोनों जगह पे फोकस नहीं कर पा रही थी. सो आई वॉज इन टू कंफ्यूजन कि अभी मैं फैशन डिजाइनिंग चालू रखूँ या फिर मैं मेकअप स्टार्ट रखूँ. दोनों ही चीजें मुझे अच्छी लग रही थी, दोनों ही
मेरे यू कैन से लाइकिंग्स थे दोनों, बट मुझे दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी थी वो टाइम पर। तो देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे मेकअप में जाना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड, वो पूरा मेरा जो बुटीक का था वो सब कुछ मैंने वाइंड अप किया। एंड देन आई स्टार्टेड विद द मेकअप दिस थिंग, और विद इन 1 ईयर, हाँ 1 ईयर मैंने मेरा अकेडमी भी स्टार्ट कर दिया, मुझे स्टूडेंट्स आने लगे। एंड देन ग्रो होते होते 3 साल में मैंने ब्राइडल बहुत सारे ऑर्डर्स कर लिए। सो यू कैन से विद इन 3 years शायद मैंने 1000+ ब्राइड्स की है, विच इज ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। क्योंकि लोग जो 20 years तक इस फील्ड में नहीं कर पाते हैं ना, वो सारे अचीवमेंट मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में मिले हैं। It really happened very fast for you. Yeah. Yes, हाँ. Maybe it's because of your talent, ma'am. It's because of talent. People recognize. And already I am into one field, so उनके सारे जो clients थे वो भी इसमें मुझे convert करते हुए मिले। So contacts ज्यादा होने की वजह से वो बहुत फटाफट grow होते जाए। No doubt आपका काम भी उतना ही बोलता है, भले ही आपके कितने भी कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो, वन टाइम यूज होते हैं। उसके बाद अगर आप अच्छा काम नहीं दे पाते हो तो वो चीजें कंटिन्यू। हाँ, तो जितना आपका माउथ पब्लिसिटी अच्छा होता है ना, उसके बाद यू आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रोग्रेस इनटू योर वर्क। I even saw that you आपको अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं because of makeup. या मेकअप के अवार्ड्स मिले, उससे ज्यादा एक्चुअली आई एम नोन फॉर द जजिंग पार्ट। मैं ज्यादातर कंपटीशन में जजिंग करने जाती हूँ इनटू गरबा कॉम्पिटिशन। आई एम अ प्रोफेशनल गरबा प्लेयर, सो मुझे उसके अवार्ड्स बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। और यू कैन से उसी वजह से आई एम इनटू इन दिस फील्ड, कि उसके वो एक रीजन था मेरा मेकअप सीखने का, कि मुझे स्टेज पर जाना है तो मुझे खुद के ऊपर मेकअप करना है। तो वो रीजन से मैं यहाँ पे गई कि अगर मैं स्टेज पे जा रही हूँ तो आई शुड बी प्रेजेंटेबल। तो अगर मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, इतना क्राउड मुझे देख रहा है, सो इसकी वजह से मैंने मेकअप सीखा। तो आप मेरे इस पे देखोगे पेज पर, तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स एज एन जज भी मिले होंगे और एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी मिले हैं, बट जजिंग के मेरे पास ज्यादा ये है। मैम यू आर इनटू गरबा, मतलब यू आर ट्रेन्ड डांसर है कि दैट यू नो प्योरली गरबा नाइट में? ये हमारे जीन्स में है। गुजराती लोगों को जो है ना वो इनबॉर्न टैलेंट है कि आपको गरबा आना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गुजराती होगा, शायद बहुत रेयरली होंगे जो गुजराती है और उनको गरबा नहीं आता। बिकॉज हमारे यहाँ हर एक छोटा बड़ा इवेंट गरबा के सिवाय कंप्लीट नहीं होता। इधर कोई छोटा बर्थडे पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है, शादी है, संगीत है, गरबा शुड बी मस्ट। इधर यू आप वो तो गरबा नहीं पाने वाले हैं। क्योंकि गरबा नहीं है तो कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता हमारे यहाँ। इवन आप मानोगे नहीं, हमारा सर्टिफिकेशन भी होता है ना मेकअप का, मेरे एकेडमी का, तो पीपल आस्क फॉर गरबा डांस। तो हम लोग पहले एक बार गरबा कर लेते हैं, फिर बाद में डीजे पार्टी होता है। वो गरबा आप लोग का चलता रहता है। यस यस। आई ऑलवेज सी, मतलब गुजराती फ्रेंड्स है, दे आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हाइप ड्यूरिंग दिस पीरियड कि गरबा आने वाला है। हाँ, बट सैडली मैं बोल सकती हूँ लास्ट 3 years से पीपल आर लाइक कब गरबा होगा। सारे गुजराती क्राउड इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि 3 साल से गरबा खेलने नहीं मिला है। बट यू नो व्हाट, आई एम स्टिल डूइंग जजिंग एवरी नवरात्रि वर्चुअल गरबा। यानी हम लोग कैमरा पे आपको देख रहे हैं, लाइव बैंड भी चालू है, बट आपको घर पर गरबा खेलना है। सो ऑल दिस फैसिलिटी वी आर गिविंग टू क्राउड कि आप गरबा खेलो, लेकिन सेफली खेलो, अपने घर पर खेलो। और उसमें से वी आर सिलेक्टिंग विनर्स एंड ऑल गरबा के। अभी रिसेंटली भी वी आर प्लानिंग फॉर ऑल ओवर इंडिया और यू कैन से अब्रॉड में भी ये कॉम्पिटिशन हम लोगों ने अनाउंस किया है, जिसमें जिसका नाम है डिजिटल ग्लोबल गरबा ऑनलाइन, जहाँ पे आपको वीडियोस भेजने हैं ऑनलाइन पे अपने गरबा के, और उसमें से वी आर सिलेक्टिंग द विनर्स फॉर द गरबा। सो गरबा चालू ही है कहीं पे भी। ये वाला कंपटीशन कब से स्टार्ट होने वाला मैम? कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। मेरे पेज पे ही आपको उसके सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ये कंपटीशन है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ, और एक वेबसाइट है उसका, उस पर आपको आपका वीडियो अपलोड करना है। तो वो अपलोड करने के बाद आई थिंक 15th इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन।
एंड आप उस पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद 24th को वी आर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स। बट 200 विनर्स है, 200 प्लस विनर्स ऑल ओवर 200 वर्ल्ड प्लस विनर। विनर्स। यस यस। कितना रजिस्ट्रेशन आता है, मतलब लाइक अप्रॉक्स व्हाट? रजिस्ट्रेशन कितना आता है, लाइक अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन तो कितना आता है? शायद बहुत आते हैं, बिकॉज बॉम्बे से ही इतने सारे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें कैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। छोटे बच्चों से, हमारे यहाँ 5 साल के बच्चे से गरबा खेलना स्टार्ट करते हैं। सो 5 years से लेके आप 80 years के जो रहते हैं ना, उनके भी कॉस्ट्यूम खेल के वो गरबा खेलते हैं। सो बहुत सारे एंट्रीज होते हैं। सो इसका ऐसा कोई नहीं है कि आपको इतना, क्योंकि शायद यूएस में भी हमारे एडवर्टाइज हो रहे हैं, तो वहां से, दुबई से, सब जगह से एंट्रीज आती है उसके लिए। सो इट्स नॉट ऐसे कि सिर्फ इंडिया में है या सिर्फ महाराष्ट्र का कंपटीशन है, इट्स ऑल ओवर वर्ल्ड। तो सब जगह पे जहां जहां गुजराती रहेंगे ना, वो अपना वीडियो बनाएंगे और हमको भेजेंगे। तो इट विल बी अ फन थिंग टू डू, मतलब कितना ऑर्गेनाइज करने में आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत मजा आता होगा, इवन टू जज, इवन टू लुक एट दोस वीडियोस एंड या। बिकॉज देर आर 40 जजेस, सिर्फ 2-3 जज नहीं है, 40 जजेस है। एंड जो मेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो दुष्यंत सोनी एंड अमित सोनी, 2 भाई है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और उनके अंदर ये सारे गरबा के जो जजेस है मेन वो सारे हैं, और उनके थ्रू ये पूरा जजिंग होने वाला है। सो इट्स अ बिग कमिटी। हाँ, इट्स अ बिग थिंग। या ऑल द बेस्ट फॉर दैट इवेंट। आई थैंक होप यू कि सो मच। बहुत अच्छे लोगों को, बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए, बहुत लोगों को अवार्ड भी मिले, एंड इट विल बी फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू टू। या थैंक यू सो मच। मैम, you are a makeup artist, right? So, ऐसा कोई skincare tip that you want to share with our audience? ऐसा ट्रिप, मेरा सबसे रीसेंट उदयपुर का ट्रिप बहुत अच्छा हुआ था। इट वॉज माई लाइक ड्रीम थिंग, आप बोल सकते हो कि डेस्टिनेशन वेडिंग इनटू उदयपुर, वो भी पैलेस में। तो इट वॉज अ ग्रैंड वेडिंग, बहुत सुपर था। ब्राइड, ग्रूम, एवरीवन वाज लाइक सो कूल, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा इवेंट किया था। आई वॉज देयर फॉर 3 functions: संगीत, वेडिंग एंड रिसेप्शन। So that function was really great and I enjoyed a lot there. और उसके सिवाय डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे मैं जाती रहती हूँ, बट वो वाला वेडिंग मेरे लिए बहुत ये था कि मैं आई एम गोइंग टू उदयपुर, और उदयपुर वो भी एक पैलेस में शादी हो रही है। उदयपुर पैलेस। यस, हाँ। तो आप इतने सारे वेडिंग्स में जाती हैं, इवेंट्स में जाती हैं, मेकअप के लिए, फॉर जजिंग ऑल्सो, तो एनी फन स्टोरी दैट हैपेंड ड्यूरिंग दोस इवेंट्स दैट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। आप इतने सारे इवेंट्स में जाती हैं, लाइक फॉर मेकअप ऑल्सो एंड फॉर जजिंग एज वेल, सो ऐसा कोई फन स्टोरी दैट हैपेंड विद यू ड्यूरिंग दोस इवेंट्स दैट यू वांट टू शेयर? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। रिसेंटली इट हैपेंड कि हम लोग ब्राइड के रूम में थे, एंड ब्राइड की सारी जो रिलेटिव्स होती है, लड़कियां होती है, एक रस्म होता है, जूता छुपाने का रस्म होता है, कि हम दूल्हे का जूता चुरा के लेके आते हैं। तो वो सारी लड़कियों ने वो जूता चुरा के लेकर आए, एंड दे, हम लोग रूम्स में, उन लोग बाहर थे, तो रूम में थे, तो दे आर लाइक कि यू कीप इट विद यू, आपके यहाँ रखो, आप छुपा के रखो, आपको कोई नहीं पूछेगा करके। कोई पूछेगा नहीं। तो हमको दिया वो जूते है ना, वो छुपाने के लिए। तो हम लोगों ने वो जूते छुपा दिए, एंड आफ्टर ऑल पूरा शादी वादी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। फिर रिसेप्शन का टाइम आया, तो दुल्हन का भाई आया हम लोगों के पास, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मेरे जूते नहीं मिल रहा है करके, दूल्हे का भाई, दुल्हन का भाई। सो उन लड़कियों ने गलती से दूल्हे की जगह पे दुल्हन के भाई के जूते चुराए हुए थे। सो वी वर सो लाफिंग कि दूल्हा बराबर में जा रहा है, इन्होंने अपने घर के अपने भाई के, वो बेचारा लड़का पूरा टाइम बगैर जूते के घूम रहा था। ये तो मतलब जो रस्म हुई वो भी नहीं हो पाई, उनका अब अपने भाई को टीज हो गया। yes, we were, इतना पेट हो गया था हम लोग का हंस हंस के, क्योंकि वो बेचारा जूते में घूम रहा था और दूल्हा अच्छे से था, और ये सारी लड़कियां इतना जोर जोर से हंस रही थी कि हमने किसी और की जगह पे किसी और के जूते उठाए। मैम, आप मेकअप करती है, सो एनी स्किन केयर टिप दैट यू वांट टू गिव, फॉर स्किन केयर, कि क्या करना चाहिए टू कीप योर स्किन हेल्दी? एनी टिप दैट यू वांट टू गिव टू? आई ऑलवेज से कि मेकअप है ना, हम लोग करते हैं भले, बट जब तक आपका ओरिजिनल स्किन अच्छा नहीं होता ना, तो
तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, हम आपके डार्क सर्कल्स हाइड कर सकते हैं, पिगमेंटेशन हाइड कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, बट जब तक आपका, आप बोल सकते हो ना, एक कैनवास होता है, कैनवास एक व्हाइट कैनवास है और एक ग्रे कैनवास है। व्हाइट कैनवास पे पेंटिंग अच्छा होगा या ग्रे पे अच्छा होगा? तो हमेशा हम व्हाइट सोचते हैं। तो अगर हमारा अंदर का स्किन ही अच्छा है तो ऑटोमेटिकली मेकअप अच्छा ही होने वाला है। अगर हमारे स्किन में प्रॉब्लम है तो हमको करेक्शन करना पड़ेगा, 2-4 लेयर्स और बढ़ाने पड़ेंगे, तो मेकअप ऑटोमेटिकली थोड़ा केकी हो जाता है। सो वी ऑलवेज सजेस्ट ब्राइड्स और किसी को भी कि आप स्किन केयर पहले करो। अगर हम कितना भी ट्राई करेंगे, अगर वो लड़की ने स्किन केयर नहीं किया है, उसका स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, शी इज नॉट इवन यूजिंग मॉइस्चराइजर और ऑयल और एनीथिंग, तो हम कितना भी मेकअप करेंगे तो वो मेकअप फट जाएगा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा स्किन केयर करो। स्किन केयर के लिए एटलीस्ट आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट रात को नाइट केयर के टाइम एटलीस्ट यू कैन यूज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इज मस्ट आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। उसके सिवाय अगर आप कुछ चीजें कर सकते हो तो इट्स एक्सट्रीमली गुड कि अगर आपके पास टाइम है तो आप नाइट केयर के लिए यू कैन यूज नाइस ऑयल, मॉइस्चराइजर है, स्क्रबर है, देन क्लिंजर है, काफी सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। बट मस्ट थिंग इज स्किन केयर। जो आपका नाइट रूटीन है वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप रात को सोते टाइम अगर 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हो तो यू शुड डू इट डेली, क्योंकि वो 10 मिनट अगर आप 15 दिन तक भी करते हो तो 15 दिन के बाद आपका स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है। तो अगर आपका स्किन वैसे ही अच्छा है तो आपको ज्यादा मेकअप का जरूरत ही नहीं है। So I always suggest कि skincare is must rather than doing makeup. एंड अपना स्किन को हेल्दी रखना भी चाहिए, यू नो, मॉइस्चराइज, एज यू सेड कि मॉइस्चराइज करना। हाँ, क्योंकि अगर आपका स्किन हाइड्रेट नहीं है तो हम कितना भी अच्छा मेकअप लगाएंगे ना, वो कुछ ना कुछ, काफी लोग बोलेंगे कि मेकअप केकी हो रहा है या पैचेस हो रहा है या फट रहा है। तो दैट्स द रीजन व्हाई, बिकॉज आपकी स्किन आपने पहले से हाइड्रेट नहीं की हुई है। हम लोग काफी जगह पे जाते हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया होता है, बट दे वांट एक्सट्रीम ऐसे न्यूड मेकअप, ग्लोई मेकअप। हाउ वी कैन डू? अगर वो उनका स्किन ही उतना अच्छा नहीं है तो वी कैंट गिव द 100% रिजल्ट। वो कंपेयर करते हैं किसी ब्राइड का कि हमारा इनका इतना अच्छा हुआ है, आपने कैसे किया है। दैट टाइम हमें उनको बोलना पड़ता है कि उनका खुद का स्किन उतना अच्छा है, उन्होंने इतना केयर किया हुआ है। सी, लाइफ में एक बार शादी है, हम एक बार जाके फेशियल ब्लीच करवाएंगे तो एक दिन में कोई स्किन ग्लो नहीं करने वाला। यू नीड केयर फॉर दैट। अगर आप केयर नहीं कर रहे हो तो वो स्किन नहीं अच्छा होने वाला। मैम, या डेफिनेटली मैम, वो स्किन को, यस मैम, यस मैम, यस मैम। यू नो, यू, आप 3 साल से इस फैशन ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री? The thing is, हमारे इंडस्ट्री में मेकअप में there are 2-3 parts. Like one is a celebrity makeup artist. One you can say a bridal industry. Bridal industry जिसमें हम लोग हैं, जिसमें हम लोगों को ब्राइड को रेडी करना होता है या फिर उनके रिलेटिव्स को रेडी करना होता है। आई फील कि इट्स वेरी, आप बोल सकते हो, रिस्पेक्ट वाली चीज है कि ब्राइड आपके पास आती है, वो आपको आपके रिव्यूज यानी चीजें देती है, रेफरेंस पिक्स देती है कि हमको कैसे रेडी होना है, क्या होना है। तो आई फील सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से बेटर मुझे ये ब्राइडल इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा लगता है कि इसमें आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते जाते हो। और द थिंग इज कि उनका जो बड़ा दिन है, यू कैन से अ बिग डे, उस दिन आप उनको रेडी कर रहे हो तो दे आर सो हैप्पी व्हेन वो जब रेडी होके जब हमको रिव्यूज देते हैं ना, वी फील सो हैप्पी कि हमने उनको इतना अच्छा रेडी किया है या उनको हमारा काम अच्छा लगा है। यू नो, जैसे आपने कहा उनका बिग डे होता है, सो यू नो, उनको सेटिस्फाई करना उस दिन पे, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एज वेल। क्योंकि अगर यू आर अ फैशन स्टाइलिस्ट एज वेल, हाँ बोलिए, या प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। what Ma'am, you were saying something. I forgot now you say. Ma'am, you are a fashion stylist as well. तो यू नो, आप लोगों को स्टाइल करते हैं, उनको टिप्स देते हैं, व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर। तो हाउ विल यू डिफाइन योर ओन पर्सनल स्टाइल?
My personal style. See, I am little chubby and healthy, so I generally prefer dark shades clothes. यानी अगर मैं बहुत लाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ तो आई लुक मोर बल्जी. अगर मैं डार्क शेड्स के कपड़े पहनती हूँ तो आई लुक लिटिल थिन, यू कैन से. वैसे ही सेम हम लोग आई मेकअप में हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं. लोग हमें बोलते हैं कि हमको स्मोकी आइज करना है, स्मोकी आइज करना है. स्मोकी आइज इज व्हाट अ डार्क शेड. तो बहुत आंखें छोटी होती है तो हम नहीं सजेस्ट करते हैं स्मोकी आइज, बिकॉज ऑलरेडी आपकी आइज छोटी है, उसमें आप अगर आप डार्क शेड कर रहे हो तो आंखें और छोटी लगती है. सो वी ऑलवेज सजेस्ट देम कि आप थोड़े न्यूट्रल कलर लीजिए और थोड़ा सटल मेकअप कीजिए. हाँ, जिसकी आंखें अच्छी है, बड़ी है, वी ऑलवेज सजेस्ट देम कि नहीं आप स्मोकी आइज कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा पॉपअप होता है. वैसे ही सेम क्लोथ्स का भी वैसे ही है कि अगर आप पतले हैं तो आप लाइट कलर भी पहन सकते हो, डार्क भी पहन सकते हो. बट फॉर मी माई सेल्फ आई ऑलवेज प्रिफर अ डार्क शेड्स एंड आई यूजुअली वेयर 3/4. मैं शॉर्ट्स या क्या बोलते हैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ. एल्बो स्लीव्स भी बहुत रेयर. मोस्टली आई प्रिफर 3/4 स्लीव्स. एंड आई एम लव टू वेयर साड़ी. ग्रेट फैन ऑफ साड़ीज एंड ट्रेडिशनल आउटफिट्स. मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे वेस्टर्न पहनना पड़ रहा है, बट अगर मुझे कोई बोले कि साड़ी पहनना है तो आई लाइक 365 days आई एम रेडी टू वेयर अ साड़ी. आई एम वेरी श्योर आप इतनी ब्यूटीफुल पहना है वो आपको, आप पे साड़ी और अच्छा भी लगता है. साड़ी तो यू शुड वेयर साड़ी. एंड मैं बहुत ज्यादा ज्वेलरी की फैन हूँ, बहुत, क्योंकि साड़ी होने के बाद यू कैन वेयर अ नाइस ज्वेलरी, यू कैन मिक्स मैच विद दैट. तो वो सारी चीजें आई लव टू वेयर. इन एनी अवार्ड फंक्शंस या ऐसा कुछ भी है तो आई प्रिफरेबली वेयर साड़ीज और अ नाइस सलवार कुर्ता और यू कैन से नाइस ड्रेस. I know, Amala, I can get that you are more into traditional outfits. Yes, yes, yes. Ma'am, according to you, can someone be fashionable without spending a lot of money? I think they can be, because ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो तभी ही आप फैशनेबल लग सकते हो. इट्स अप टू यू. सी कैसा होता है पता है, आप एक लड़की को देखो जिसने शायद 500 रुपीज की साड़ी ली है, बट उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है और ड्रैप अच्छे से किया हुआ है, तो वो वैसे भी फैशनेबल लगेगी. हाँ, लेकिन अगर मैंने किसी को 50,000 की साड़ी पहनी है लेकिन उसने साड़ी एंकल लेंथ की पहनी, उसको साड़ी पहननी ही नहीं आती है, तो वो 50,000 की साड़ी भी उसको फैशनेबल नहीं बना सकती है. सो इट्स डिपेंड ऑन यू, हाउ यू कैरी योर सेल्फ. तो इसके लिए आपको ब्रांड और इसका आप बोल सकते हो ना कि मनी मैटर नहीं करता. वेरी वेल सेड मैम. वो यू नो जैसे कैरी करता है उसी पे डिपेंड करता है कि क्या फैशनेबल लगेगा, क्या फैशनेबल नहीं लगेगा. यस यस यस. उसके लिए आप मैम, इज देयर एनी फैशन और मेकअप, is there any fashion or makeup trend that you find overrated or underrated? I didn't get you. What you say? Is there any fashion or makeup trend that's going on right now that you find overrated or underrated? नो, आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि अभी का यंग एज क्राउड भी है, उसको भी मेकअप का बहुत नॉलेज है. और आप बोल सकते हो कि हमारी एज में भी मेकअप का लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उसको आप अंडर रेट भी नहीं बोल सकते और ओवर रेट भी नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स नेसेसरी. नाउअडेज इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या सब जगह पे मेकअप इज ऑन ट्रेंड. मतलब होता है ना मेकअप का कोई चीज जैसे लाइक स्मोकी आई फॉर एग्जांपल, वो भी बीच में ट्रेंडिंग चला था. हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ जो सिंपल मतलब मेकअप में कुछ ट्रेंड्स तो निकले हैं दैट यू फाइंड इट अ बिट ऑफ ओवररेटेड, मतलब पीपल ज्यादा हाइप कर रहे हैं उसको, दैट डजंट डिजर्व दैट मच हाइप. आप जैसे बोल रहे स्मोकी, जैसे अभी निकला है न्यूड मेकअप. ब्राइड्स भी अभी न्यूड मेकअप बहुत ज्यादा प्रेफर करती है, उनको बहुत ज्यादा कलरफुल या बहुत ज्यादा लाउड मेकअप पसंद नहीं है. मेकअप शुड बी लाइक इट्स योर स्किन. आपका स्किन है वैसा ही मेकअप दिखना चाहिए. ऐसा नहीं चाहिए कि आपने केक थोप दिया है, पूरा जितना मिला सारे प्रोडक्ट्स लगा दिए. आजकल आई मेकअप भी बहुत सटल चल रहे हैं, सिर्फ आई स्मोकी चल रही है, बहुत ज्यादा विंग लाइनर्स वगैरह वैसा नहीं चल रहा है. और जितना शाइन वाला मेकअप या ग्लॉसी मेकअप यू कैन से, जिसमें आपका स्किन ग्लो कर रहा है, वो मेकअप ज्यादा ट्रेंड में है अभी. ट्रू. हाँ, वो ज्यादा ट्रेंड में एकदम न्यूड सटल एंड यू कैन से आप स्किन ज्यादा ग्लो करनी चाहिए और मेकअप शुड बी लाइक स्किन.
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी स्किन पे कुछ लगाया हुआ है. सो अभी का जो यंग क्राउड है, दे आर ऑल इनटू न्यूड मेकअप्स. True. हम्म. क्योंकि बहुत मैम सारा अकॉर्डिंग टू यू, कलरफुल मेकअप हाँ नहीं बहुत सारा पसंद कर गाइस रहा को लगता है कि हाँ. है. मैम अकॉर्डिंग टू यू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसका फैशन सेंस आपको सबसे पसंद आता आई लाइक दीपिका पादुकोण. उनका मेकअप मुझे हमेशा बहुत पसंद आया हुआ है. उनके हेयर स्टाइल्स यू कैन से, उनका मेकअप आई ऑलवेज लव कि वो हमेशा ब्राउन स्मोकी आईज करती है. बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोकी आईज नहीं होती है उनके. और उनके आईज भी बहुत प्रिटियर, फेस कट वगैरह बहुत अच्छा है. तो उसकी वजह से मुझे उनका मेकअप ज्यादा पसंद आता है. है? ट्रू, दीपिका मैम इज रियली ब्यूटीफुल. Yes. जो पहनती है शी कैन कैरी हरसेल्फ. हाँ. मैम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, आर यू अ बॉलीवुड फैन? Not that much. I like Do you watch Bollywood Madhuri movies? Dixit is my great inspiration, you can say. I love her dressing sense, the way she carry herself, at what age she are, and what she is now. True. Madhuri ma'am is amazing. You know, Yeah. she the dance is not an expression this time. Yes, yes. Because I am also a dance lover, so I can see her expression, Yeah, I her get smile. that. Everything is too good. Too good. Hmm. Ma'am, do you watch Bollywood movies? Like, are you a big movie buff or do you watch Bollywood movies? Yes, I do. अभी लॉकडाउन में यही काम किए हैं. जितने मूवीज थे सारे देख ली, क्योंकि वैसे हमको फुर्सत नहीं मिलती है. बट अभी लॉकडाउन में वी गेट सो मच टाइम कि हमने शायद हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स इन सब पे मूवीज ही देखी है. So, ma'am, let's play a little game about Bollywood movies. Okay. So, इसमें basically the game name is 5 seconds a movie. And इससे basically I will explain you the plot of a movie without mentioning the actor's name or the characters, the actors that the characters played. Okay. No, I won't mention both of the names, and you have to guess the movie. Okay, I need to guess the movie. Okay, yeah. I'll try my best. I'm not that great at that, but I'll try. Okay, the first one is a movie where fetus kicks on command. It's a bit tricky. You have to think a bit. The audience, if they get before ma'am, please do comment. Can you tell me again the question? Yeah, ma'am. A movie where fetus kicks on command. No, I seriously don't know no clue. And I am sure you have watched this movie. Like, I'm pretty sure you have watched this movie. You have to think a little. No. A movie where fetus kicks on command. Anyone from the audience, if you get the movie names, then please do comment. A movie where fetus kicks on command. Anyone? You want a hint, ma'am? No. You want a hint? Yes, please. The actor who played in the movie, like one of the main actors, is Aamir Khan. It's Aamir Khan. Aamir Khan की movie है. A movie where fetus kicks on command. Baapre. That फाइट वाला मूवी, कुश्ती वगैरह लड़ते हैं उन लोग. नहीं, fetus kicks on command. Movie where fetus kicks on command. वो एक phrase होता है that Aamir Khan says that because of that the fetus kicks on command. नहीं, I don't have any clue. Even anyone, no one is commenting. Like nobody has any clue. No, seriously, in comment box also I'm not seeing the answer. नहीं पता है शायद. Okay, the movie is Three Idiots. Okay. Aamir Khan बोलता है ना all is well. You know what? Three Idiots का story ऐसा है कि I was like मेरा second delivery था, 9 months की, I was around almost delivery का time था, और मैंने वो मूवी देखा था. उसमें वो वैक्यूम से डिलीवरी करते हैं, तो
मैंने वो मूवी तब भी देखा था. So like my husband is always telling ऐसा कुछ होता है क्या डिलीवरी के टाइम पर. You आपके मतलब second अगर you were still calm. First में you were thought कि तो गलत हो जाएगा. Now you get to understand the game. Yes, What you yes, have to I do. understand the game. But seriously, Okay, I'm the not next that one. great in that, but I'll try my best. Okay, let's try one more. Okay. Yeah, sure. The next one is a movie where workers win a game to evade taxes. Lagan? हाँ. Wow, I did it. 1 point. Okay, the next one is ऐसी movie where the daddy was the gold digger, he only wanted gold. Daddy was a gold digger and he only wanted. He only wanted gold. Movie name is Gold? नहीं. Daddy, okay, the keywords are daddy and he only wanted gold, like nothing else, only gold. Daddy. Can you give me a hint about the actor or actress? I will give you a hint about the movie only, okay? Okay. He only wanted gold, not bronze, silver, only gold. No. You even mentioned this movie name previously. It's Dangal? Someone commented, Lekha Dangal. 2-3 people commented. Tanushree also commented. Okay. That Yeah. Amir Khan got Dangal. that gold That- medal. Okay, gold. Only I realized wanted gold, now. not bronze or silver. Ah. Okay. You only have 1 point till now. You have to buckle up. I told you I'm not that great in that movies and all. Okay, the next one is एक ऐसी मूवी जिसे देख के स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका ही स्कूल बहुत गरीब है. उनका ही स्कूल बहुत गरीब है. हाँ. जो जीता सिकंदर वही नाम है शायद. नहीं. थोड़ा पुराना, थोड़ा नया में आएंगे. थोड़ा नया में आएंगे. थोड़ा नया. बट उसमें भी ऐसे ही होता है. हाँ, बट लेकिन मतलब वो दिस क्वेश्चन मीन्स कि वो स्कूल इतना लैविशिंग दिखाया है उसमें that the students feel that उनका ही स्कूल गरीब है. लाइक ऐसा तो हमारे कॉलेज में Student of नहीं the है. year. हाँ. Okay. 2 points. Okay, the next one is एक ऐसी मूवी जहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ ना बोल के और कुछ ना सुन के भी प्यार हो सकता है. कुछ ना बोल के और कुछ ना सुन के भी. कुछ ना सुन के भी प्यार हो सकता है. बाप रे. I need hint. ऐसी कोई मूवी मुझे. रणवीर कपूर की मूवी है ये. रणवीर कपूर की मूवी. हाँ, रणवीर कपूर. Priyanka Chopra was there in that movie. Yeah. मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. मुझे मूवी याद है. But I will still give you this. I will still give you this. Barfi is the name. उसमें एक सॉन्ग भी है शायद. वो वाला सॉन्ग. गलती से मिस्टेक वाला ऐसा कोई तो सॉन्ग है शायद. नहीं, गलती से मिस्टेक is not in Barfi. Okay, Barfi. प्रियंका मैम एंड रणवीर सर की ये मूवी है Barfi. So 2 points. I will still give this point because you told 3 points. Okay, 3 points. Thank you so much. Okay, the next one is एक ऐसी मूवी जहाँ पे दो ट्विन ब्रदर की मूवी है जिसमें दे समन कमेंटेड बर्फी फाइनल. Okay, बर्फी अभी किसी ने कमेंट किया शायद. Okay, the next movie is एक ऐसी मूवी जहाँ पे दो चोर ट्विन ब्रदर की मूवी की एंड में साथ में डेथ हो जाती. Again, Ranveer Kapoor and Arjun Kapoor movie. नहीं. दो ट्विन ब्रदर. Twin brother. You are right, kind of, but वो गुंडे हो गया उसमें भी. हाँ, उसमें भी दो भाई. इसमें ट्विन है. हाँ, इसमें ट्विन है. Yeah, twin. ये आमिर खान मूवी. It's आमिर खान movie. Yes, you can do it. I mean, Dhoom 3 या Dhoom 2 something. Doom 3. Yes, Dhoom 3. Yes. 4 points.
You know, you are good at this. वो starting में थोड़ा सा हुआ था मैम. Now you are really good at it. Okay. The next one is एक ऐसी मूवी जहाँ पर हार्मोन सैंपल एक्सचेंज होने के कारण बेबी एक्सचेंज हो जाता है. I can't hear you properly. Please tell me one more time. एक ऐसी मूवी जहाँ पे हार्मोन सैंपल एक्सचेंज होने के कारण बेबी एक्सचेंज हो जाता है. हार्मोन एक्सचेंज होने के कारण बेबी एक्सचेंज हो जाता है. क्लू एटलीस्ट एक्टर का नाम बताओ. मैम बेबी अच्छा हिंट द हिंट इज जब बेबी का न्यूज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइक बेबी होने वाला तो इट्स अ गुड न्यूज. वो मुझे किसी ने यहाँ पे नीचे लिख के दिया कमेंट बॉक्स में. ओहो ये तो देन यू वोंट गेट द पॉइंट. गुड न्यूज इज द यू हैव यू वॉच्ड गुड न्यूज? नो. ओके देन तो हाउ वुड यू गेट इट? Okay, the next one is एक ऐसी movie where it shows that don't hit your kids, let them follow their passion. Hello. Don't hit your kids. Don't hit your kids. Let them follow their passion. Don't hit your kids. Let them follow their passion. It's again a Amir Khan movie. It's a famous movie, yaar. How I can? It's a very famous movie. It's again a Three Idiots. नहीं. Then Amir Khan. आमिर खान. हाँ, वो छोटा बच्चू वाला मूवी जिसमें small kid है. Oh shit, I forgot the name. तारे जमीन पर. Yes ma'am. ये मतलब अगर आपने नहीं बोला सीधे I would have given you the point because this is God's movie, you know? बहुत अच्छा movie था. Okay, the last one is एक मूवी जहाँ एक आदमी अगर कोई उसको उंगली दिखाता है तो उसकी उंगली तोड़ देता है. उंगली दिखाता है तो उंगली तोड़ देता है. उंगली तोड़ देता है. हाँ, अगर उस आदमी को कोई उंगली दिखाता है. हाँ, गोलमाल पार्ट 2. 3, but still I will give you 3. No, you were pretty good at it, you know, starting with, but you know, just think about the movie, it was really great. Ajay Devgan is also my favorite star, so मुझे उसके movies थोड़े बहुत याद है. Ajay Devgan is your favorite actor? Yes. Okay, तो अजय देवगन को और देना चाहिए था. हम आमिर खान को दिए खाली. ना. Okay. Ma'am, you are also the co-founder of WEE, Women Excellence Empowerment. Yeah. So what's that organization about? It's about all women entrepreneur. वो उनको सपोर्ट करते हैं. Like अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह करना है तो you can come and ask them for a help. Okay. And they promote and so they when did you start it? Give awards. It's a committee. It's not by only me. It's a committee जिसमें मैं co-founder हूँ, and they give awards and they encourage all the ladies, those who achieve something and they done great in their own field. Ma'am, you know, you yourself started your career so late and, you know, you are following your passion and you're also helping other women in a way to, you know, encourage them that they follow their passion and, you know, you are encouraging them to become empowered. So that's really great. And that's a very great and noble thing to do from your own part. See, I feel in my classes in academy, I have one 60 years lady who is coming to learn. शी इज अ बैंकर. हाँ, मेरे क्लास में है एकेडमी में जो 60 इयर्स के हैं और वो सीखने आते हैं मेरे पास. तो मुझे उनको देख के इतना मोटिवेशन होता है कि अगर ये एज में कोई कुछ सीख सकता है तो मैं तो फिर भी बहुत जल्दी एज में सीखी हूँ. उनका अभी रिटायरमेंट हुआ है बैंक से अभी रिसेंट इसी साल में. एंड नाउ शी इज लाइक कि मैं अभी फ्री बैठी हूँ, क्या करूंगी, तो आई विल स्टार्ट विद दिस करियर. सो आप सोच सकते हो कि कैसा कैसा लोग हमको मोटिवेशन या इंस्पायर्ड करते हैं कि ये एज में अगर आप के पास 50 एज के भी है और 16 एज की लड़कियां भी हैं जो सीखने आती हैं.
सो 60 years में अगर कोई सीख सकता है तो आई एम तो लाइक आई फील कि मैंने बहुत जल्दी सीखा हुआ था. सो कोई भी एज हाँ एज के लिए आपको ये नहीं है कि नहीं अब अभी मैंने इतना मेरा एज हो गया अभी मैं क्या करूंगी. क्योंकि क्या होता है पता है, एक सर्टन टाइम के बाद किड्स बड़े हो जाते हैं, दे हैव देयर ओन फ्रेंड्स, उनका खुद का सर्कल होता है. दैट टाइम यू फील अलोन कि आप क्या कर रहे हो, फिर एक हाउसवाइफ बन के रह जाते हो या घर संभालना है. तो वो टाइम पे आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप उसको बाहर निकालो. ऐसे मत सोचो कि अभी हमारा एज हो गया अब हम क्या करेंगे करके. यू कैन स्टार्ट विथ न्यू करियर. आप कुछ भी कर सकते हो जिस फील्ड में आप अच्छे हो. कोई भी चीज, अभी तो इतने सारे स्कोप है सब चीजों में, तो कोई भी चीज ज्वाइन करके यू कैन, आप अपने आप को मोटिवेट करके या अपना. और आजकल मुझे लगता है लोग सपोर्ट भी इतना अच्छे से करते हैं. जैसे मुझे है, मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, दैट्स आई एम हियर. कि माय किड्स है, अभी मेरी 17 years की डॉटर है. आई हैव 17 year डॉटर. उसने लास्ट टू लास्ट ईयर समझो ना 10th कंप्लीट किया. 10th के बाद लॉकडाउन आ गया. लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन सेशन ही चल रहे हैं कॉलेज के. तो व्हाट शी इज डन, उसने मुझे ज्वाइन कर लिया. एंड नाउ एट द एज ऑफ 17 and a half शी इज हैविंग हर ओन ब्राइड्स. तो वो खुद भी, हाँ, उसका कॉलेज भी चल रहा है, उसके साथ में वो अपना पैशन भी फॉलो कर रही है. उसने मुझे ज्वाइन कर लिया है. शी लव टू डू द मेकअप एंड शी इज डूइंग ग्रेट. सो नाउ अगर मेरा डेट्स ब्लॉक है तो पीपल सामने से पूछ रहे कि आपकी डॉटर अगर फ्री है तो वी आर रेडी टू डू विथ हर ऑल्सो. तो उसके लिए भी ब्राइड्स के बहुत सारे इंक्वायरीज है. It's great, आपकी बेटी भी आपके पाथ पे चल रही है, फॉलोइंग हर पैशन एज वेल. यस यस, जो शी कैन सी, मुझे So देख रही है. motivate. This motivates you like age doesn't matter, आपका एज हो चाहे 70 आपकी डॉटर का या 60 years का भी हो. Yes. Anyone can do whatever they want. Yes, yes. Until they have the willpower and family support, as you mentioned. फैमिली सपोर्ट इज मस्ट. फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई भी फील्ड में जाने के लिए अगर आपका बैक सपोर्ट आपका फैमिली है ना, तो यू कैन अचीव एनीथिंग. जब तक आपका फैमिली आपके साथ है ना, नो वन कैन बीट यू. No one will question you, and you also feel good that okay, that someone is there to help me and support me, help or support me. What? Hello. That you always feel that someone is there to back you, whenever you fall or whenever you feel low. So family support is must. My husband is my moral support. He is the you can say in every path he always encourage me. Kalpana, you have so much talent, you should do this, you should do that. In fact, when I was confused about fashion designing and makeup, he encouraged me कि Kalpana, you can do this. Makeup में तेरा हाथ बहुत अच्छा है because you are having an artistic hand. Because I was good in college studies and arts and all thing. So he is like कि तू अगर fashion कर सकती है तो तू ये भी कर सकती है. So उसने मुझे इतना encourage किया. Right now मैं मॉर्निंग शायद 4 बजे या 5 बजे उठ के ब्राइड्स के लिए जाती हूँ, टिल रात को 8 बजे तक आती हूँ. बट ही इज लाइक 8 बजे के बाद आने के बाद भी आई कैन सी स्माइल ऑन हिज फेस एंड हाउ मच ही सपोर्ट मी. कि एवरी 3 to 4 hours ही कॉल मी एंड कल्पना तूने खाना खाया या नहीं खाया, बिकॉज माई शेड्यूल इज लाइक हेल जब सीजन स्टार्ट हो जाता है तब. सो समवन इज देयर हु केयर फॉर यू. एंड मेरे किड्स भी ऐसे हैं. यस, एंड द टीम विच आई हैव, जो मेरा टीम है, बिकॉज वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो. अगर आपके पास अच्छा टीम है, यू हैव गुड असिस्टेंट्स जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, सो इफ यू आर दे आर देयर तो ही आप हो, अदरवाइज आप नहीं हो. बिकॉज टीम वर्क इज ऑल्सो नेसेसरी. अगर मैं दिन की 5 ब्राइड कर पा रही हूँ तो वाई, बिकॉज मेरा टीम वर्क अच्छा है. मैम, जैसे आपने कहा था कि आप ब्राइडल मेकअप में आई हैं, 3 साल हुआ आपका है, तो जो यंग एस्पायरिंग मतलब पीपल है जो इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, उनके लिए एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू देम? आई कैन टेल यू, आज के डेट में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन काफी सारे लोगों के जॉब्स छूट चुके हैं. काफी सारी चीजें यहाँ से वहाँ मैसअप हो चुकी है. बट आई एम टेलिंग देम कि मेकअप अभी का जो ये फील्ड है, मेकअप आर्टिस्ट का फील्ड, इट्स अ बेस्ट फील्ड राइट नाउ. क्योंकि लोग जब ऑफ हो जाते हैं ना, तभी सिर्फ मेकअप नहीं करवाते, उसके बाद हर एक फंक्शन में पीपल डू मेकअप. सो शादियां होने वाली है, लोग तैयार होने वाले हैं. सो
ये फील्ड अभी के डेट में सबसे ज्यादा, और इसके लिए द थिंग इज आपको एजुकेशन का जरूरत नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो. इट्स डिपेंड ऑन योर आर्ट, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है. योर ओन टैलेंट. यस, सो इसके लिए एजुकेशन इज नॉट मस्ट. और आप बहुत ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है. स्टार्ट में अपने थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया, तो उसके बाद अगर आपको अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं तो आप क्लास चालू होते होते ही अपने इसमें कवर कर सकते हो. यस, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स. आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, आपका काम अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका वो पैसा तुरंत रिकवर हो जाता है. क्योंकि क्लास स्टार्ट होते होते ही लोगों को ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे ही पब्लिसिटी स्टार्ट होता है कि आप सीख रहे हो, तो कोई ना कोई आपको बोलता है हमारे अभी फंक्शन है, ये है, वो है, तो रेडी होना होता ही है. सो हमारे इंडस्ट्री में मंदी नहीं है. मैंने शायद लॉकडाउन में नॉर्मल सीजन में इतनी शादियों के ऑर्डर्स नहीं लिए जितने मैंने लॉकडाउन में किए हैं. लोग घर पे फ्री बैठे थे एंड वी आर डूइंग वर्क. मैंने लॉकडाउन में पूरा पीपीई किट पहन के ब्राइड्स की है. I was feeling like कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ. आई एम डूइंग सर्जरी. यस, पूरा पीपीई किट पहन के आई यूज्ड टू डू द ब्राइड्स, क्योंकि शादियां तभी भी हो रही थी. बट नॉर्मल सीजन से ज्यादा लॉकडाउन में शादियां हुई है, बहुत सारी. मतलब ऐसा, मतलब how do you want them to be prepared to, you know, before they step into the industry? I don't think so. There is a need of any preparation. Just a few amount. आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि इतने अमाउंट का आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या इतना अमाउंट आपको फीस के लिए स्पेंड करना है. एंड द मस्ट थिंग इज सोशल मीडिया. आज की डेट में इफ यू आर गुड ऑन सोशल मीडिया, तो आपको प्रमोट करने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है. वाई आई एम हियर, इतना जल्दी ग्रोथ क्यों किया हुआ है? बिकॉज आई हैव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, तो कैसे सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आप कर सकते थे. आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस टारगेट है, जिसकी वजह से आप ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस स्प्रेड कर सकते हो. सो राइट नाउ मेरा ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे मुंबई में रहती हूँ तो मैं सिर्फ मुंबई का क्राउड टारगेट कर सकती हूँ. लोग मुझे सब जगह से देख सकते हैं, मेरा काम सब जगह से देख सकते हैं. सो एनीवन कैन अप्रोच मी कि हमको यहाँ पे ब्राइड करनी है तो आप यहाँ पे आ जाओ करके. नाउ इट्स अप टू मी कि मुझे कहाँ जाना है. बट ऐसे कि इट्स लाइक अ शॉप. आप उसमें जितना स्टॉक भरोगे ना, जितने आपके पास ब्राइड्स होंगे, उतना आपके ऑर्डर ज्यादा बढ़ते जाएंगे. और ये वर्ल्ड वाइड हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं. सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना पेज बना दो, दैट्स इट, और उस पे अपना काम डालो. आपने कभी आउट ऑफ इंडिया गए फॉर मेकअप पर्पसेस? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट आई रियली विश कि मुझे ऐसा टाइम जल्दी आएगा. And I wish the same for you as well. Yeah, thank you so much. I've seen your photos and you are really amazing. You know, all the brides, everyone, even you look so pretty on Instagram. Thank you so much. I really wish all the success to you, because with the 3 साल you have really a long way to go. Yeah, thank you. You know, in this industry, and I really hope that you do have a firm hold in this industry. Yeah. Thank you so much. And any last, yeah. Thank you so much, ma'am. Then any last message that you want to share with our audience? Last message यही है कि आप अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपको ग्रो करना है या कुछ करना है, एनी एज, तो डोंट स्टॉप. आप अपने पैशन को फॉलो करो. फैमिली इज फर्स्ट प्रायोरिटी, वो होना ही चाहिए. आई ऑलवेज फील फैमिली इज फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को भी देखो, और आपको जो, बिकॉज खुद की आइडेंटिटी होना भी बहुत जरूरी है आज की डेट में. सो आई फील कि आप फैमिली को साथ में रख के अगर आप काम कर रहे हो तो इट्स रियली ग्रेट. मैम, जस्ट द वे, यू नो, जैसे आप हैं, आपने शादी के बाद स्टार्ट किया है, ऐसे बहुत सारे प्रीवियसली भी हमारे प्लेटफॉर्म में, यू नो, वुमेन आई हैं जिन्होंने अपना करियर शादी के बाद ही स्टार्ट किया है. यू नो, कुडोज टू ऑल ऑफ यू मैम, एंड एवरीवन जो अपने आप को सोसाइटी के प्रेशर बांध लेती है, नो, ये आफ्टर मैरिज जो लाइफ स्टॉप, उसको उस चीज को नहीं मानती है. एज डजंट मैटर, ये चीज को प्रूव करती है. So, you know, it really feels good as a person that, you know, you don't let anything stop you from being who you are. Because शादी के पहले कैसा होता था पता है,
मेरा तो आज 18 इयर्स हो गया शादी को। 18 इयर्स पहले वी आर नॉट अलाउड टू डू वर्क। सो हाँ, आप पढ़ रहे हो या नाउ द कुछ भी कर रहे हो, situations यू are, आर नॉट अलाउड। अगर हाँ, हाँ आपके ससुराल से आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप जा सकते हो। सो तभी आप भले कितने भी टैलेंटेड हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू डू वर्क, क्योंकि वर्किंग जो वुमन है उनके साथ लोग शादियां नहीं करते। ऐसे हमारे यहाँ कम्युनिटी में ऐसी चीजें होती थी। बट नाउ डेज आई कैन सी पीपल लाइक लेडीज आर ग्रोइंग। सब अपना अपना खुद ना खुद कुछ ना कुछ society is जो changing, टैलेंट है yeah. वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो थोड़ा फॉरवर्ड हो चुका है। वो लोगों को उनको लगता है कि लेडीज को भी अपना टैलेंट दिखाना चाहिए और उनको भी काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं कि मेल पार्ट ही सिर्फ टैलेंटेड है, फीमेल उतनी ही कंपैरेटिवली टैलेंटेड है। सो True, ma'am. हाँ, सो ये ईगो पावर किसी में भी मुझे नहीं लगता अभी आज के किसी मेल में है। जैसे मैं मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ, ही ऑलवेज फील प्राउड फॉर मी कि नहीं कल्पना, तुम इतने आगे बढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, व्हाट यू आर डूइंग इज रियली ग्रेट, एंड ही ऑलवेज एनकरेज मी। तो उसको ऐसा मेल ईगो नहीं है कि नहीं कल्पना इज डूइंग सो ग्रेट ऐसा। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वो होना भी नहीं चाहिए, और वो अब लोगों में खत्म भी हो रहा है, सारी चेंज हो रही है। एंड वी रियली बिलीव कि कुछ टाइम पर पूरी सोसाइटी चेंज हो जाए। अभी भी यस। कुछ हिस्से हैं ऐसे हाँ। जो इस चीज को मानते हैं, बट आई रियली वांट कि वो पूरा इरादिकेट हो जाए। वो होगा, इन चीज में टाइम लगेगा, बट वो भी होगा। नहीं, बट काफी हो चुका है। आई कैन सी दिस चेंज इन हाँ, एवरीवेयर कि लोग अभी समझने लगे हैं कि अभी का यू कैन से एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं या सब चीजें इतनी बढ़ चुकी है कि मेल और फीमेल अगर दोनों साथ में नहीं काम करेंगे तो नहीं पूरा हो पाएगा। सो इट्स लाइक दोनों को एक फैमिली के पिलर के जैसे काम करना पड़ेगा। ट्रू मैम। You are really the true definition of woman empowerment. थैंक यू सो मच डियर। Thank you so much. Thank you so much, for coming to our platform and sharing your stories. And it really made me feel good to know that people like you are getting empowered yourself and helping others to be empowered as well. So it really feels good to know that, and it really, spreads a bit of positivity around all of us. Thank you so much for accepting my invitation. थैंक It यू was सो really मच lovely यार। talking to you. या थैंक यू टू। It was really, या thank you, ma'am. It was really our pleasure to have you on. या Thank you so much, ma'am. Bye. बाय बाय, टेक केयर डियर। Thank you so much everyone for watching this live session. अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी जाके देखिएगा। हमें प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों को जिनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, जो बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में बुलाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड ट्राई टू हैव फन। तो प्लीज गाइस हमें सपोर्ट कीजिएगा एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऐसे ही हम लोग लोगों को बुलाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। Until then, bye.